अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 3 चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज माय विलेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, इनके जवाबात आपने चैप्टर में से ढूंढ के भी लिखने हैं या इसमें से कुछ ऐसे सवालात हैं जो क्रिएटिव भी हो सकते हैं। नंबर 1, वाई आर एहसन एंड सारिम एक्साइटेड। एहसन और सारिम क्यों पुरजोश थे? दे वर एक्साइटेड बिकॉज दे वर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर। वाई डू देयर ग्रैंड पेरेंट्स लव अ विलेज लाइफ? They love a village life because it is simple and pollution free. Question number 3, when do Ehsan and Sarim visit their parents? They visit their grandparents on 1st June. What is the profession of most of the villagers? So the answer is most of the villagers works in the fields. Number 5, why did Ehsan and Sarim move to a city life? The answer is on page number 12, line number 13. Ehsan and Sarim moved to a city life with their parents because there is no high school in the village. There are less facilities. Number 2, fill in the blanks using the given words. आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, आपने इनको इन sentences में fit करना है। Their grandparents live in a village. Their village is small but is dash and beautiful, clean and beautiful. Most of the houses are made up of mud. The air has no dash because there is no traffic. The air has no pollution. Number 5, they love their village because it is very dash. It is very peaceful. Now move on to the next page, which is page number 14. Silent letters. In some words, the letter K, B and W are written, but they are not pronounced. These words are called words with silent letters. Let us read the rules for silent words. यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं K, B और W। अगर ये किसी वर्ड के अंदर आ जाएं तो इनको हम साइलेंट रखते हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं करते, इनकी साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। सो दे हैव गिवन यू सम रूल्स। इसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर साइलेंट K. The letter K is silent at the beginning of a word if it comes before the letter N. K साइलेंट होगा अगर ये एक वर्ड जो है N उससे पहले आ जाए, जैसे कि नाइफ, KNIFE। हम कनाइफ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं नाइफ। K इज साइलेंट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज नो, KNOW। इन दिस वर्ड K इज साइलेंट। वी आर नॉट सेइंग कनो, इट्स नो। K इज साइलेंट. Rules for silent W. The letter W is silent at the beginning of a word if it comes before the letter R. अगर एक लेटर R है उससे पहले W आ जाएगा तो W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट, WRITE, राइट। In this word W is silent. The second example is wrong, wrong. I am not saying wrong. W का साउंड हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। The word is wrong. Rules for silent B. The letter B is usually silent when it comes after the letter M at the end of a word. It is also silent when it comes before the letter T. एक लेटर है B, ये हमेशा साइलेंट होगा जब ये M से पहले आएगा या कभी कभार T से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉम, 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 ब नहीं, ब, नो, इट्स कॉम। नेक्स्ट डाउट, DOUBT, P इज साइलेंट। आई एम नॉट सेइंग डबाउट, इट्स डाउट। अनदर एग्जाम्पल इज थम, वी से थम, नॉट थम ब, इट्स थम। नाउ रीड द गिवन वर्ड विथ साइलेंट लेटर्स। साइलेंट K, knit, knee, knock, knowledge. Silent W, wrinkle, wrap, writing, wrist. Silent B, lamb, crumb, subtle, debt. इन सब वर्ड्स में साइलेंट वर्ड्स की साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी।
Now move on to the next topic, 3 consonant clusters. First of all, let me tell you what are consonants. As you already know, what are vowels? A, E, I, O, U. The alphabets other than vowels are called consonants. So consonant clusters, cluster मतलब मजमुआ. अगर आपके पास consonants words यानी कि A, E, I, O, U के अलावा कोई भी words आ जाते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो consonant clusters बनाएंगे. A group of 3 consonants in a word with no vowels between them is called 3 consonant clusters. A consonant cluster can be found at the beginning or at the end of a word. एक वर्ड अगर उसके शुरू में या उसके आखिर में 3 ऐसे वर्ड हों जो कॉन्सोनेंट्स हो और वो इकट्ठे हों, उनके दरमियान कोई वॉवल वर्ड ना आ रहा हो, उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहेंगे. इसकी एग्जांपल से आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर शुरू में 3 ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो कॉन्सोनेंट्स हों. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉ, STR. ये तीनों लफ्ज़ क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि इनमें कोई इनके दरमियान वॉवल वर्ड नहीं है. A, E, I, O, U कोई वर्ड नहीं है. तो ये क्या बना रहे हैं? इनिशियल पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. सेकेंड वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीम, स्प्लैश, स्प्रे, स्क्रेप. इन सब वर्ड्स में इनिशियली 3 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट हैं. इसी तरह हम फाइनल पोजीशन की बात करेंगे. फर्स्ट word is attempt, MPT. फाइनल पोजीशन एंड में देखिए लास्ट 3 वर्ड्स MPT. दे आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, उनके दरमियान कोई वॉवल वर्ड नहीं है. इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हैं. टेम्प्ट, प्रॉम्प्ट, लिफ्ट्स, ड्राफ्ट, स्विफ्ट्स. आप ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम जो इंग्लिश यूज करते हैं उसमें हम ए को स्लांट नहीं करते, हम ए को स्ट्रेट बोलते हैं. ड्राफ्ट्स भी कह सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 15. आइडेंटिफाई द इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर दैट मैचेस द नेम ऑफ द ईच पिक्चर इन सर्कल द आंसर. यहाँ पे आपको एक तस्वीर दी गई है, उसके नीचे 3 ऑप्शंस हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की. आपने बताना है कि तस्वीर को देखते हुए इसका नाम क्या है. आपको नाम पता होगा, आपको उसका स्पेलिंग पता होंगे, तो ही आप बता सकते हैं कि इसके कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इनिशियल या फाइनल कौन से बन रहे हैं. सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं. आपके पास है एक स्क्विरल, स्क्विरल गुलहरी जिसे कहते हैं, स्क्विरल, स्क्वीरल नहीं, स्क्विरल. सो STR, SQU, SPL. तो आप 3 वर्ड बताइए कौन से इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर बना रहे हैं? स्क्विरल. नेक्स्ट इज श्रिम्प, श्रिम्प, SPR, THR या SHR. So SHR is the right option. Next they have given you straw, STR, SQU, SPL. So the correct is STR. Now move on to final position. यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट आइटम्स बताए गए हैं. आप बताइए नीचे फाइनल जो पोजीशन है उसमें कौन से कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आएंगे? AND, FTS, AMP. So the answer is FTS because they are gifts. Now they have given you a picture of a camp, NGE, AND या AMP? Yes, AMP, camp. There is another gift, NGE, FTS, gifts. Speaking skills, read the given dialogue to learn about gratitude. इस कन्वर्सेशन को, इस डायलॉग को पढ़िए ताकि शुक्रगुजारी के बारे में आप जान सकें. Sam, Mother, can I start my lunch please? आपने देखना है कि जो प्लीज, सॉरी, शुक्रगुजारी के जो अल्फाज हैं वो हम कैसे अदा कर सकते हैं. Mother, yes you may, but say Bismillah first and say thanks to Allah. Sam, why should I thank to Allah? Mother, because we should be grateful to Allah. He has blessed us with everything. He is merciful. Sam, oh, I have understood, Mother. Role play the above given dialogue in pairs. 2 बच्चों को पेयर्स में खड़ा कीजिए और उनके साथ ये डायलॉग की प्रैक्टिस करवाइए. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.